اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مدثر مجید ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فخر حسین طاہر صاحب. آج کے پروگرام میں ہم نہایت اہم اور حساس عالمی مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اس وقت دنیا کی توجہ مشرقی وسطیٰ کی جانب مرکوز ہے، جہاں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. یہ تنازع صرف دو ممالک تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے، عالمی سیاست، عالمی معیشت اور عالمی امن پر مرتب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ مدثر مجید صاحب. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ایک بڑے سینسٹیو مسئلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اسرائیل اور ایران کے درمیان جو بنیادی وجہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، پہلا مسئلہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے. ایران اسرائیل کو نجائز ریاست سمجھتا ہے اور اسرائیل ایران کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ خطے میں اثر و رسوخ کو انکریز کیا جائے اور اس کی بالادستی ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جوہری جو پروگرام ہے ایران کا، وہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ پراکسی گروپ کی آپس میں وار ہے. کچھ گروپ جو ہیں وہ ایران کے پیچھے کھڑے ہیں اور کچھ گروپ جو ہیں یقینی طور پر کھل کے وہ تو اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. نظریاتی اختلاف، اپنا اثر دکھانا، علاقے میں بالادستی قائم کرنا، اور ایران کا جوہری پروگرام اور کچھ حمایتی گروپوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جی. ڈاکٹر صاحب، جو موجودہ تنازع ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ رہے گا، محدود رہے گا، کہ یا یہ ایک علاقائی جنگ کی شکل اختیار کرے گا؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تنازع جو ہے وہ طوالت نہیں پکڑے گا. یہ صرف انہی دو کنٹریز کے درمیان میں رہے گا. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ایران ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے روس اور چائنا. روس اور چائنا کے مفادات میں ہے کہ وہ سپورٹ کرے ایران کو، اس لیے وہ ڈگے چھپے سپورٹ کر رہے ہیں، کھل کے سامنے نہیں آ رہے. نہ چائنا آ رہا ہے نہ روس آ رہا ہے. تو رشیا اور چائنا کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم ایران کے پیچھے کھڑے رہیں اور ایران کو مضبوط کریں، جبکہ جو اسرائیل اور اس کے حمایتی ہیں یو ایس اے اور یو ایس اے کے جو لابی ہے وہ ساری اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دفعہ یورپین یونین جو ہے اس نے کوئی حمایت نہیں کی. یعنی یورپ میں بڑی تعداد میں جیسے فرانس ہے، جیسے باقی کنٹری ہیں، اسپین ہے، انہوں نے مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، جو اٹیک ہے اس کے اوپر وہ غلط ہے، اور انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. یہ ایک بڑی تبدیلی اس جنگ کے نتیجے میں آئی ہے کہ اس دفعہ یورپ امریکہ اور اسرائیل کے پیچھے نہیں کھڑا. جی. تو ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل سیکیورٹی پالیسی میں ایران کو اپنا سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات؟ وہ میں نے جو پہلے بتایا کہ ایک تو نظریاتی اختلاف ہے، دوسرا ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر یہ ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس کو ایران کھلم کھلا جو ہے وہ ان کی حمایت کرتا ہے اور فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اٹامک پاور بننے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور حماس اور حزب اللہ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ خطے میں
सॉरी, इजराइल चाहता है कि खित्ते में उसकी बालादस्ती हो और ग्रेटर इजराइल बन जाए। जी, जी। बिल्कुल ठीक। तो सर जो करंट सिनेरियो में मतलब रूस और चीन की मुमकिना हिकमत अमली क्या हो सकती है? आप इस हवाले से क्या रोशनी डालें? मैं बात कर ही चुका हूँ, रूस और चाइना दोनों, रशिया और चाइना दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान की सपोर्ट करें और ईरान को कमजोर ना होने दें। अगर खुदा न खास्ता ये जंग जीत जाता है इजराइल और अमेरिका, तो ये बड़ा खतरा होगा रूस और चीन के लिए। रूस और चीन को ये सूट नहीं करता कि ईरान हार जाए और जो यूएसए है और इजराइल जीत जाए। इसलिए रूस और चीन की सफारती हिकमत अमली यही है कि पीछे रहकर ईरान को सपोर्ट किया जाए और ईरान को मजबूत किया जाए। जी, जी। तो सर आलमी मीडिया को आप किस अंदाज से देखते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रेल कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस पस मंज़र में वो चीज़ों को बयान कर रहा है? आप क्या समझते हैं? जो इस सदी का सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो मीडिया है। पहले शायद मीडिया इतना मजबूत नहीं था, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और जैसे ही ये सोशल मीडिया आया है तो मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। अगर मीडिया को हम देखें तो मीडिया तीन तरह का है। एक मीडिया है जो वेस्टर्न मीडिया है, यूरोप है उसके पीछे, और वो मीडिया तो ये दिखा रहा है कि जी ईरान ने इसराइल के साथ ज्यादती की है और इसराइल जो है वो बड़ा मजलूम है और उसने अटैक नहीं किया बल्कि ईरान ने अटैक किया है और इसराइल अपना दफा कर रहा है। अब वो मीडिया जो इसके अलावा है, यानी जिसको वेस्टर्न सपोर्ट हासिल नहीं है, वो मीडिया ये दिखा रहा है कि ईरान के ऊपर जुल्म हुआ है। सोशल मीडिया जो तीसरा मीडिया है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वो मुख्तलिफ तरह की वीडियो बना रहा है और वीडियो बना के जो ईरान के हमैती हैं वो कह रहा है कि ईरान जीत गया है और जो यूएसए के हमैती हैं वो कह रहा है कि यूएसए और इसराइल जीत गया है। तो ये तीन तरह से मीडिया जो है वो डिवाइड हुआ है। जी, जी। तो सर करंट सिनेरियो में आप पाकिस्तान का क्या रोल समझते हैं कि पाकिस्तान को कैसा रोल जो है वो परफॉर्म करना चाहिए इस करंट सिनेरियो में? पाकिस्तान को यकीनी तौर पर ये जंग रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस जंग का पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसा कि अभी ये ऑयल प्राइसेस जो हैं ये बढ़ी हैं और ऑयल प्राइसेस 55 रुपीज पर लीटर का बढ़ जाना पाकिस्तान में एक लहर उठेगी महंगाई की और एक बहुत बड़ा मसला बनेगा, जिससे हमारा जीडीपी भी कम होगा, हमारे मसाइल बढ़ेंगे और लोग मुश्किलात का शिकार होंगे। पाकिस्तान को चाहिए बड़ी मतवाजन पॉलिसी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दुनिया में ये बावर करवाए कि ये जंग किसी मसले का हल नहीं है, इस जंग को रोका जाए और इस जंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़्तिदामात किए जाएं और मुख्तलिफ अलायंस बनाए जाएं। यकीनी तौर पर इंगेज किया जा सकता है यूरोप को और इंगेज किया जा सकता है चाइना और रशिया को कि ये जंग रोकी जाए, और उसके साथ साथ मशरिक़े वुस्ता जो है खलीजी ममालिक जो हैं ये इनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो ये इनको मिला के और बाकी दुनिया को मिला के पाकिस्तान को हर सूरत जंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जी, जी। डॉक्टर साहब अभी हम सुन रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ वहाँ पर ईरान की जो है वो समझता हूँ कि डोमिनेंस है, वहाँ से किसी किस्म की आमदरफ्त जो है वो रोकी जा रही है। कोई भी अगर वहाँ से कोई जहाज़ गुजरता है, बहरी बेड़ा गुजरता है तो उसको रोक लिया जाता है। तो आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की क्या अहमियत है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आबनाए हुर्मुज़ बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक की पर्टिकुलरली जो खलीजी ममालिक हैं उनकी सारी की सारी उनका कारोबार जो है वो ऑयल जो है और गैस जो है वो यहाँ से जाती है। ये मुख्तलिफ एक 33 किलोमीटर की
एक रेंज है जो जहां से ये सारी शिपिंग होती है। ईरान को भी इसको बंद करना नुकसानदेह होगा, क्योंकि ईरान का जो ऑयल है वो भी यहाँ ही से जाता है। अगर ये बंद हो जाती है, मुकम्मल बंद हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान किन के लिए होगा? पर्टिकुलरली एशिया के लिए होगा, क्योंकि एशिया में 83% जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, जो ऑयल है, वो यहाँ से जाता है। 17% सिर्फ जो है ना वो बाकी कंट्री को जाता है। तो एशिया पूरी तरह मुतासर होगा, जिसमें जापान है, चाइना है और बाकी साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, और जितना भी एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या दूसरे कंट्रीज हैं, ये मुतासर होंगे। और ईरान को भी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि इसको बंद करने का फायदा नहीं है। ईरान सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इसको बंद करके दुनिया पे प्रेशर डालना चाहता है कि जंग को रुकवाया जाए, और वो एक हथियार के तौर पर शायद इस्तेमाल कर रहा है। इन द लॉन्ग रन ना ईरान के लिए ये फायदा है और ना ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग रशिया, बाकियों को फायदा नहीं होगा, लेकिन रशिया को इसको बंद करने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि रशिया का जो ऑयल है वो मुख्तलिफ कंट्री मजबूर हो जाएंगे उनको लेने के लिए। लिहाजा रशिया को इससे बेनिफिट है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके लिए ये बड़ी ही अहमियत की हामिल है। डॉक्टर साहब, करंट सिनेरियो में अगर देखें तो हाल ही में कल की न्यूज़ है कि इंडिया जो है वो रूस से तेल लेने जा रहा है, जो कि उन्होंने अलो किया है अमेरिका ने कि आप 1 महीने के लिए जो ऑयल है आप उनसे ले सकते हैं। तो पाकिस्तान 1 महीने के लिए रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकता? इसकी क्या वजह है? बस वही अलायंस है पाकिस्तान का अमेरिका के साथ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अमेरिका को जोर दे कि जैसे वो इंडिया को इजाजत दे रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान भी इंडिया से ऑयल ले। और ऑयल प्राइसेस का इस तरह से बढ़ जाना ये इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तानी मैशत के लिए। और यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी पहले ही बड़ी कसम पुरसी का शिकार है, और अब जिंदगी और ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, और लोग बड़ी मुश्किल में हैं पाकिस्तान में। आपको पता है गुर्बत कितनी है, और लोग जो हैं उनके रोजगार नहीं है उनके पास, और उनके पास पैसे नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को अमेरिका से डिमांड करनी चाहिए कि उनको भी ऑयल जो है वो वहां से लेने दिया जाए और ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है प्राइसेस, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कम हो सकती हैं अगर पाकिस्तान रशिया से पेट्रोल जो है उसको वहाँ से लेता है, तो उसके साथ अगर ट्रेड करता है। तो लेकिन करंट सिनेरियो में अगर हम देखें कि कल रात ही जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो 55 रुपीज़ तक जो है वो इंक्रीज़ की हैं, जो कि डेफिनेटली इसका जो सारा का सारा बर्डन है वो आवाम के ऊपर आएगा। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो अब सर, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब इस सारी सिचुएशन से, इस सारे क्योस से कैसे बाहर निकला जा सकता है? पाकिस्तान भी अब जो है इनडायरेक्टली इस चीज का शिकार होने जा रहा है कि मतलब वहां पे महंगाई आएगी इस जंग की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? और शिकार होने नहीं जा रहा, शिकार हो चुका है। अभी जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो बता रही हैं कि हम शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर और मशरिक़ वस्ता के मुमालिक को मिलकर इस जंग को फौरन रुकवाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये जंग रुक जाए ताकि हालात नॉर्मल हो सके। अदरवाइज पूरा खित्ता इससे मुतासर होगा, पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन रुका हुआ है, और बाकी कंट्री में, कतर में और बाकी कंट्री में भी फ्लाइट के लिए बड़ा मसला है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। पर्टिकुलरली यूरोप और अमेरिका के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ये जंग जो है इसका ये किसी का सोल्यूशन नहीं है। ये जंग इंतहाई खतरनाक जंग है, और ये जंग जो है वो हर सूरत में इसको कोशिश करनी चाहिए कि इसको खत्म किया जाए और अमन की तरफ बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से बहुत सारे जो लोग हैं के जो व्यूज हैं वो काफी हद तक क्लियर हुए होंगे।
اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے کمپریہنسولی ان تمام کوشچنس کو ایکسپلین کیا ہے. بہت ساری جو کویریز ہیں آپ کے مائنڈ میں تھی, آئی ہوپ سو کہ وہ اب کافی حد تک حل ہو چکی ہوں گی اور آپ کو ان کے جوابات مل چکے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ہاٹ ٹاپک پر, اس خصوصی اس موجودہ اور کرنٹ ٹاپک کو لے کر ڈسکس کیا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ